Division of sectors as organized and unorganized. Let us examine another way of classifying activities in the economy. This looks at the people, the way they are employed. What are their conditions of work? Are there any rules and regulations that are followed as regards their employment? Now here we take up two stories, one of Kanta and one of Kamal. Firstly, we take up the story of Kanta. Kanta works in an office. She attends her office from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. She gets her salary regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. She also gets medical and other allowances. Kanta does not go to office on Sundays. This is a paid holiday. When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and conditions of work. She works in an office, time 9:30 to 5:30 p.m. Salaries get regularly. She gets provident fund. She gets medical and other allowances. Does not go to office on Sunday. It is a paid holiday. Appointment letter was given which stated that at what are the conditions according to which she will work. Now we come to the second story. That is of Kamal. Kamal is Kanta's neighbor. He is a daily wage worker or laborer in a nearby grocery shop. He goes to the shop at 7:30 in the morning and works till 8 p.m. in the evening. He gets no other allowances apart from wages. He is not paid for wages or the days he does not work. He has therefore no paid leave or holidays. Nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop. He can be asked to leave any time by his employer. So what is the difference? The difference is he is a daily wage laborer in a grocery shop. He goes at 7:30 to 8 p.m. So roughly more than 12 hours of work. No other allowances from wages. और जिस दिन वो छुट्टी कर लेते हैं तो उसको उसके पैसे नहीं मिलते हैं. देयर इज नो पेड लीव और हॉलीडेज. और उसको कोई लेटर भी नहीं दिया गया कि आपकी नौकरी की ये शर्तें हैं जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हो. और दुकानदार या जो ग्रोसरी शॉप ओनर है वो उसको कभी भी जाने के लिए कह सकता है या उसकी छुट्टी कर सकता है. तो इससे आपको एक अनुमान लगा होगा कि कांता और कमल के केसेस में दोनों के जो वर्क कंडीशंस हैं उनमें क्या अंतर है. देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस इन द वर्किंग कंडीशंस ऑफ कांता एंड कमल. नाउ टू एक्सप्लेन दैट, Kanta works in an organized sector. What is organized sector? Organized sector covers those enterprises or workplaces where work and terms of employment are regular. Organized sector वो होता है जहाँ पे कोई कायदे कानून काम करते हैं, वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. People are assured work and उनका काम पक्का होता है. They are registered by the government and have to follow its rules and regulations. जहां वो काम करते हैं वो जगह रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के साथ और वहां पे उन्हें जहां वो काम करते हैं उस संस्था को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं जो अलग अलग कानूनों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं. जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट एंड ग्रेच्युटी एक्ट, Shop and Establishment Act. These are the acts and the laws that have been made by the government in the organized sector, which the owners of the enterprise or the factories or the businesses have to follow in order to give the benefit to the employees. So this helps the person who is employed in a many ways. It is called the organized sector because it has some formal process and procedures. Some of the people may not be employed by anyone but may work on their own, but they have to register themselves with the government and follow the rules and regulations. पहले तो मैंने आपको बात बताई कि वो लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस का फायदा मिलता है क्योंकि उनके मालिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, उन्हें गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ता है. लेकिन अगर वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहा, खुद काम कर रहा है, तो भी उसको रजिस्टर करना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ और उसको भी वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं. और अगर कोई उसके यहाँ काम करता है तो उसको भी वही सुविधाएं देनी होती हैं जो गवर्नमेंट के कानून के अनुसार उन्हें मिलनी चाहिए. जैसे कि छुट्टी मिलनी चाहिए और पेड लीव मिलना चाहिए, टाइम पे काम होना चाहिए, फैसिलिटीज मिलनी चाहिए.
वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उनकी नौकरी का एक सिक्योरिटी होती है, उनको ऐसे नहीं है कि आज काम पे हैं, कल नहीं है, कल निकाल दिया गया। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, और उनकी जो वर्किंग है आवर्स हैं, जो समय है वो फिक्स्ड है। इफ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम। अगर वो 10 से 5 काम करते हैं 10 AM to 5 PM, आफ्टर दैट इफ दे आर वर्किंग दे आर गिवन एक्स्ट्रा मनी, दे आर पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। इसके अलावा भी उन्हें अनेक सुविधाएं मिलती हैं। व्हाट आर दीज बेनिफिट्स? ये क्या फायदे हैं? दे गेट पेड लीव ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टी के टाइम में पेड लीव मिलती है। उनको प्रोविडेंट फंड मिलता है, उनको ग्रेच्युटी मिलती है। ये क्या होता है कि जब वो रिटायर होते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, पेंशन के अलावा। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट। एंड मैनेजर जो होता है फैक्ट्री का, उसको ये इंश्योर करना होता है कि जहां वो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में या किसी भी जगह पर, वहां कई सारी फैसिलिटीज जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सारी उपलब्ध हो। When they retire, they get pensions as well. So what is happening? They get paid leave during holidays, they get provident fund and gratuity, medical benefits, facilities like drinking water, facility like safe environment, and when they retire, pension as well. So these people are working in an organized sector where there are rules and regulations and they are followed, and their benefits are secure. Their job is secure and their rights are secure. As opposed to this, or you can say in contrast to this, Kamal works in the unorganized sector. The unorganized sector does not follow rules and regulations. The unorganized sector is characterized by small and scattered units which are outside the control of government. Unorganized sector वर्ड से पता चलता है कि वो और अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई चीज सिस्टमैटिक नहीं है, और स्मॉल छोटे छोटे इकाई हैं, इधर उधर होते हैं, और वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। एंड देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर फॉलोड, और वहां रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते। जॉब्स आर इनसिक्योर, लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। नौकरी जो है वो इनसिक्योर है और लो पेड है, और वो भी पक्की नहीं है। नो प्रोविजन ऑफ ओवर टाइम, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम करते हो तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं मिलता। पेड लीव हॉलीडेज नहीं मिलते, संडे की छुट्टी के पैसे नहीं मिलते अगर आप कर लेते हो। लीव ड्यू टू सिकनेस की बीमारी हो जाती है तो उसका कोई आपको लाभ नहीं है, कोई उसके लिए अलाउंस नहीं है, और आपके पैसे भी कटते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, एम्प्लॉयमेंट पक्का नहीं है, कभी भी आपको जाने के लिए कह सकते हैं। व्हेन देयर इज लेस वर्क, सीजन नहीं है, काम कम है, ऑफ सीजन है, तो ऐसे में लोगों को जाने के लिए कह देते हैं कि भाई छुट्टी अभी काम नहीं है, बाद में आना। अ लॉट ऑफ डिपेंड्स ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर, अ लॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर। मतलब यह है कि मालिक की मर्जी पे निर्भर करता है काफी। आज उसके मन में है तो आपके पैसे बढ़ा दे, आज उसके मन में है तो वो आपके पैसे घटा दे, या आज वो कह दे कि अब तुम जाओ। द सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन और डूइंग स्मॉल जॉब्स। यही नहीं है कि वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। इन दिस सेक्टर देयर आर सम पीपल हु डू देयर ओन वर्क, छोटे मोटे काम करते हैं। दे आर सेलिंग ऑन द स्ट्रीट, डूइंग रिपेयर वर्क, एंड देयर इनकम इज नॉट सिक्योर। सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन, बट किसान अपने खेत में खुद काम करते हैं, लेकिन बीच बीच में वो मजदूर रखते हैं जब उनको आवश्यकता होती है, और वहां भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते हैं। So in this way we see that there is an organized sector where there are rules and regulations, and the work is done systematically and it is controlled by the government. On the other hand is the unorganized sector where rules and regulations are not applicable, they are not applied, and it depends on the whims of the owner. And the people working in the unorganized sector, they are insecure, they don't have facilities, their conditions of work are bad, and it is not in the interest of the worker. So the unorganized sector is not good for the people, whereas the organized sector has better working conditions.